distinguished IPS officer known for his extensive contribution to public safety and law. We'd like to welcome him. His session will be in the hall, in the Crystal Hall downstairs. Yes, ladies and gentlemen, let's welcome and make some noise for Ms. Ela Arun. She's here with us. A warm रेशम का रुमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे We would first like to extend a very, very warm welcome to Ms. Ela Arun once again, and we would also like to present a bouquet to our panelists. So I'll request Rashmi Ranjan Parida, the founder of KLF, to please come on stage, do the honors. Welcome her. A renowned Indian actress, singer, television personality, best known for her contribution to Hindi cinema, Rajasthani folk music, celebrated for her unique husky voice and for blending traditional Rajasthani folk music with contemporary style. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Ela Arun. Gained prominence with songs like Choli Ke Piche from Khalnayak, which earned her the Filmfare Award for Best Female Playback Singer, has also appeared in popular films such as Lamhe, Jodha Akbar, Manto. Beyond her film career, she has appeared as a judge on television shows. And of course, her autobiography, Parde Ke Piche, was published in 2024, shedding light on her extensive career in theatre and film. We also have with us Ms. Anjula Bedi, versatile Indian writer, editor, actor and translator with a deep passion for literature and the art, has made significant contribution to the literary world, particularly in the field of corporate biographies, art and heritage, has edited over 30 books, authored several publications, co-founder of the Mumbai Surnai Theatre and Folk Art Foundation, has worked alongside renowned singer and actress Ela Arun to promote traditional art and theatre, and has co-authored the autobiography Parde Ke Piche with her, offering an intimate insight into her life and career. And of course, we have with us Ms. Lipika Bhushan. We already heard her in the morning, renowned Indian marketing and publishing professional. I'll request her to now take this session forward from here. A big round of applause as we once again welcome all of them on stage. Namaskar, good evening. कैसा feel कर रहे हैं आप after that initial song that we started with? All energized? Great. It's an honor, an absolute honor to be sharing this. I think मैं कुछ 14-15 साल की रही होंगी जब ईला जी का वोट फॉर घाघरा सॉन्ग आया था, और तब से लेके आज तक हमें कभी भी कोई फंक्शन या तो जिसमें खुद नाचना हो, जो एक एनर्जी जो इलेक्ट्रीफाइंग आज तक हम महसूस कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है ईला जी। आज मैं आपके साथ आपकी इतने रिच एक्सपीरियंस, इतनी रिच जीवन पर आपके साथ वार्तालाप करूंगी। थोड़ी सी भी कहीं गलती होगी तो उसके लिए पहले से ही क्षमा मांग रही हूँ। बट अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, अ वार्म वेलकम टू ईला जी एंड टू अंजुला जी। आई थिंक इस किताब का जो शीर्षक है एज टोल्ड टू अंजुला, मेरी समझ से हम शुरू करते हैं आपके सबसे रीसेंट आपका नाटक जो आपका चल रहा है आजाद। मेरा सौभाग्य रहा है ईला जी के बारे में हम ये जानते हैं कि वो बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, उनके बारे में जानते हैं एक इंटेंस एक्टर हैं। उनकी कजरा जब भी स्क्रीन पर आती हैं, चाहे वो सीरियस ह्यूमरस रोल में हो, कुछ है उन आँखों में जो आपको बांध देता है। हम ये जानते हैं कि ईला जी जो है पूरा जीवन स्टेज पर बीता है। सबसे रीसेंट उससे शुरू करने के पीछे और सोशल इश्यूज़ पे, ऐसे इश्यूज़ पे लिखती हैं जिस पर लोग यूजुअली, तो थोड़ा सा हमें बताइए अपने इस में द राइटर साइड इन यू, कि ये जो एक आपने नाटक लिखने का, थिएटर लिखने का जो आपने। सबसे पहले तो जोहार, जोहारी कहते हैं ना, जय जगन्नाथ। मैंने कल ऐसे दर्शन किए जो मैं बाद में बताऊंगी, पन्नों ने वो मुझे इधर से उधर खींचा पर मैं पहुंच गई। ये सिर्फ जगन्नाथ जी का कमाल है, आशीर्वाद है
कि मैंने उनके बहुत भरपूर दर्शन किए। और आज मैं आपसे ये कहूँगी कि लिटरेचर फेस्टिवल है, तो मुझे मालूम है हर आदमी जब यहाँ आता है तो ये सोचता है कि गाने गाएंगे। भाई ऐसा मत करिए, मेरा लिखने पढ़ने से बहुत करीबी संबंध है। उसके लिए बड़ा शो करेंगे, वहाँ पे हम डांस करेंगे। आई हैव नेवर बीन टू भुवनेश्वर, और आई विल कम विद माय बैंड, तब करिएगा ना, विल फ्रीक आउट। ओके, आज पढ़ने लिखने की बात है, तो आपने जो जिक्र किया कि नाटक के मैं लिखती हूँ, तो 42 साल 42 ईयर्स से हमारी थिएटर कंपनी चलती है, सुरनाई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन। और नाटक मेरे लिए वैसा ही है, शायद अंजुला जी पढ़ेंगी बाद में, जैसे कि गोल्फ खेलना। गोल्फ एक बहुत महंगा खेल है ना, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें आपके पीछे कैडी होता है, आप अपनी बॉल मारते हैं और वो आपकी बॉल को गड्ढे में गिरते हुए लेकर आता है, या हम खुद गड्ढे में गिरते हैं और हमें कोई निकालने वाला होता नहीं। क्योंकि रंगमंच जो है बहुत ही पैशनेट एक हॉबी है, और मैं अपनी समाज से, अपनी महिलाओं से, अपने परिवार से किसी भी विषय को, जो इसका हमारा स्लोगन है थॉट प्रोवोकिंग प्लेस, ऐसे प्लेस जो एंटरटेनमेंट के साथ लोगों में एक दर्पण दिखा सकें या एक सवाल कर सकें, उसके लिए सबको पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। रंगमंच खुद अपने आप में एक ऐसी जगह है कि आप कर सकते हैं। तो आपने एन एनिमी ऑफ द पीपल की बात की। हेनरिक इब्सन, जो कि नॉर्वे के बहुत बड़े राइटर हैं, उनको मैं, उनका फेस्टिवल 10 साल से मना रही हूँ, और उनको मैंने उनके 5 नाटक को एडेप्ट किया है। 5 उनके और 5 इंटरनेशनल आर्टिस्ट राइटर्स, उनको भी मैंने एडेप्ट किया है, और तकरीबन 5 मूल नाटक, ओरिजिनल नाटक मैंने लिखे हैं। एन एनिमी ऑफ द पीपल का मेरा नाम है अजात शत्रु, और आप अजात शत्रु का मतलब समझते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो। और इब्सन का नाटक का नाम क्या है? जनता का शत्रु। तो कभी कभी हम जब नामकरण करते हैं तो बच्चे को एक ऐसा नाम देते हैं कि जिंदगी उसके लिए कुछ उल्टा खिलवाड़ करती है। ये एक ऐसे सच्चे 2 भाइयों की कहानी है, जो कि अभी वाटर पॉल्यूशन चल रहा है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो इसके पीछे जो एक समुदाय खड़ा हुआ है, जो एक सिस्टम से लड़ना कितना कठिन है। वो सरकार भी हो सकती है, वो प्रेस भी हो सकती है, वो जनता खुद हो सकती है। और इसको मैंने ये बताया है कि हमारा नाटक इस तरीके से किसी ने भी नहीं अडेप्ट किया। मुझे बहुत गर्व है। जो भारतीय लोग पंच तत्व की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पर्वत की करते हैं, समुद्र की करते हैं, वायु की करते हैं, अग्नि की करते हैं, और हम ही अपने एनवायरनमेंट को ठेस पहुंचाते हैं, तो कौन शत्रु हुआ? ऐसा व्यक्ति जो ये सब कह रहा है कि प्लास्टिक मत फैलाओ, कि विसर्जन करने भी जाओ तो ऑर्गेनिक रूप से करो, या फिर अगर पानी गंदा है तो उसमें ना नहाओ, पर सिर्फ क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा। देयर इज ए लॉट। ये प्ले 2 साल पहले लिखा गया है, कुंभ तो अब हुआ है, तो आप उसमें, उस नाटक में आईना दे सकते हैं। और इस नाटक को करने के लिए जिगरा भी चाहिए, तो मैंने कर दिया। खैर, जिगरे की कोई कमी नहीं है। ईला जी ने हर वो काम जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में एक महिला के लिए स्टीरियोटिपिकल स्ट्रक्चर में रखते हैं, आपने उस स्टीरियोटाइप को हर ने का, बिकॉज देन आई विल co-author with her the stories. I've used her language as far as by a publishing company, and I've entered 8 days. So I don't know whether this is supposed to be a debut for me or is it my swan song. But anyhow, it's been great working with her. I'll just read a little bit about how theatre, what she feels about theatre, what we all feel about theatre. It's called Act 1. Its prolific literature still stands alone. The most unfortunate fact is, had a dedicated audience like some of the other regional languages. No audience basically translates into no money. The Hindi-speaking public of Mumbai chases Bollywood rather than live theatre. Parents spend a couple of $1,000 to take their children to malls to see some inappropriate film, or they spend their time at home, which has such a large choice these days. And you can spend weeks and days following them. Live theatre or classical music programs
are not part of the entertainment. These have a good audience for English theatre rather than Hindi. For the well-to-do westernized Indians, this is more like the interest in an expensive hobby. Theatre is much more challenging. A golfer stands for hours on the course trying to hit a ball into a hole. Following him is a caddy whose only job is to ascertain whether the ball has indeed rolled into the hole. If you're involved in Hindi theatre, you're like the ball that falls into the hole with no caddy to pull you out. The actor has to bring his audience to the edge of this hole and convince them that this is not just a slushy mess, unseen treasure house. If you step into it, you will find the fuel. Ela will tell you herself how we began. And it was almost aborted after the time when we were trying to found the Surnayan Theatre Group. So Ela, you can tell them about that, I guess. देखिए, मैं आपको बताऊं, आपकी जो सवाल है, आप सवाल पूछें, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि इन लोगों का ध्यान केंद्रित करना बड़ा मुश्किल होगा. जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो जनता सोने लग जाती है. पर मैं ये कहूँगी कि ये एस्पेक्ट पर्दे के पीछे लिखने का मतलब ये था कि चोली के पीछे मेरा सिग्नेचर ट्यून बन गया था. जहाँ भी जाएंगे तो वही गाना सुनना चाहेंगे. तो ये एक बात है कि फिल्मी नंबर जो है वो आइटम नंबर हैं. हम जिंदगी में जो कुछ करते हैं वो चोली के पीछे से बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. वो जो योगदान है, वो जो पढ़ाई लिखाई है, या वो जो समाज से कनेक्ट करना है, या थिएटर है, या फोक म्यूजिक है. सो माय जर्नी इज नॉट लिमिटेड टू वन चोली के पीछे. इसलिए जब मैंने किताब लिखी तो लोगों ने कहा कि टाइटल, कमर्शियल टाइटल इसका क्यों ना चोली के पीछे रखें. आई सेड फॉर गॉड सेक आई हैड इनफ ऑफ चोली के पीछे. ये बात अच्छी है कि चोली के पीछे से मेरे थिएटर में भी बहुत ऑडियंस आई. अंदर आने के बाद मैंने उन्हें कुछ और ही दिखाया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू देम टू स्पेंड सम टाइम, फोकस. वो लिटरेचर है. जिंदगी में गाना बजाना तो आई सेलिब्रेट वुमन, तो वो तो है. मैं तो नाचती गाती हूँ और मज़े करती हूँ और औरत के हर एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करती हूँ, पर थिएटर को. तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि फिर मैंने नाम रखा कि पर्दे के पीछे. यानी पर्दे के पीछे क्या है? यानी कॉमन औरत को अगर हमें एड्रेस करना है. मेरी जिंदगी यहाँ तो है नहीं. मखमल के पर्दे एक ज़माने में खुला करते थे, अगर आप थिएटर देखते हो, या फिर फिल्म, इसको बिग स्क्रीन कहते हैं, या फिर टेलीविज़न स्मॉल स्क्रीन. तो ये जो मेरी दास्ताने ज़िंदगी है वो सिर्फ मेरी नहीं है. उसमें थिएटर का चार्म, ग्लैमर, त्रासदी, स्ट्रगलर्स. आपके खुद के उड़ीसा से लोग एक्टर बनने के लिए वहाँ जाते हैं, उसके बाद वो एक एक पैसे के लिए तरस रहे होते हैं. पीतोबाश, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव, ही डिड नमस्ते विद मी. सो आपको इस किताब को पढ़ने से ना केवल इला अरुण के बारे में मालूम पड़ेगा, फिल्म जगत के बारे में मालूम पड़ेगा, लोक संगीत के बारे में मालूम पड़ेगा, रिकॉर्डिंग्स के बारे में मालूम पड़ेगा, उन अभिनेताओं या उन डायरेक्टर्स जिनकी पर्सनैलिटी ने मुझ पे छाप मारी वो कैसे लोग हैं. हम लोग एक मुखौटा पहनते हैं, आप सबने पहना हुआ है. आप यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लग रहे हैं, आप अंदर से क्या है, कुछ लग रहे हैं. तो वो आप देखेंगे कि अरे प्राण विलेन था, बहुत गंदा आदमी, इसका हर फिल्म में किसी का रेप कर रहा होता है. उनसे ज़्यादा सज्जन पुरुष कुछ नहीं है. तो किरदार निभाना और किरदार निभाने की जो प्रोसेस है वो कितना डिफिकल्ट है, ये सब चीज़ें आपको मेरी किताब में मिलेंगी. इला जी, इसी बात पे करूंगी. द वर्ल्ड ऑफ थिएटर इज सो डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट प्रोफेशन. देखिए, प्रलोभन बॉम्बे का सबसे बड़ा होता है. जो आदमी यहाँ से थिएटर करने जाता है वो थिएटर करने जाता ही नहीं है, वो स्टेपिंग स्टोन है. हर आदमी जो है फिल्म की तरफ जाना चाहता है, ओटीटी की तरफ जाना चाहता है. और जो बेचारे एक्टर्स हैं उनका तो खैर ये जॉब है, रोटी रोजी होगी. पर बड़े बड़े इंजीनियर्स, बीएचयू के, उड़ीसा के बड़े बड़े लोग, जिन्होंने ज़िंदगी से जब वो उसके एक सफोकेशन आ जाता है, वो सोचता है कि यार जीना है, उसके लिए थिएटर से बढ़िया और कोई जगह नहीं है. क्योंकि वहाँ जीना भी होता है और मरना भी होता है. मरना इसलिए कि पैसे नहीं है, जीना इसलिए कि तरह तरह के किरदार आप निभाते हैं. जैसे कि एक रोल को करने के लिए 3 महीने तक, 4 महीने तक आप उसकी लाइनें ना केवल याद करते हैं, उसके किरदार में घुसते हैं. जब वो प्ले ख़त्म हो जाता है आप तो 2 तालियां बजा के चले जाते हैं. पर हम रात भर सो नहीं पाते हैं, क्योंकि उस किरदार को अपने में से कैसे निकालें.
वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है. सो इट इज़ अ क्राफ्ट. जैसे एक पेंटर का क्राफ्ट होता है, जैसे एक मूर्तिकार का एक क्राफ्ट होता है, एक किसी किरदार को अपने में डालना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है. और मैं लकी थी कि मेरे तो जब मैं शुरू में गई बॉम्बे, मैं एक्चुअली जयपुर से ही कर रही थी और मोहन महर्षि के साथ किया, अलकाजी साहब एनएसडी के उनके साथ शॉर्ट टर्म कोर्स किया. पर वहाँ जाने के बाद मैंने नादरा जी के साथ, नादरा ज़हीर बब्बर, राज बब्बर की वाइफ के साथ प्ले किया. और मुझे ना इतना छोटा रोल मिला, मैं क्या बताऊँ. मैं जयपुर की बाकायदा एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट थी. वहाँ गई तो एक सराय का था और मुझे कोने में एक छोटी सी पलंग पे लेट के कराना था. सिर्फ करा रहे हैं आप, और बाकी लोगों का मेन रोल था. पर जब रिव्यू जिसने किया उसने सबसे ज़्यादा तारीफ की तो मेरी की. आप पूछिए क्यों. वो इसलिए, अगर मैं ज़ोर ज़ोर से कराती तो सबके डायलॉग, अगर मैं अपने दर्द को समय से निकालूंगी, मैं सो भी सकती थी वहाँ पे. 3 घंटे के नाटक में सिर्फ कराना है, सो आई कुड हैव स्लेप्ट, यू नो. पर आपको अलर्ट रहना है और अपने दर्द को ऐसा इस्टेब्लिश करना है धीरे धीरे कि जनता आपसे बंधे. सो आई गॉट द बेस्ट रिव्यू फॉर दैट. तो कहने का मकसद ये है, जब अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, अच्छे लोगों को सुनते हैं, अच्छे लोगों को उनका प्रोसेस करते देखते हैं, आपका कोई ना कोई असर पड़ जाता है. 2 नाटक नादरा जी से करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि जो लोग वहाँ गए थे वो दिल्ली में हुए नाटकों को रिपीट कर रहे थे. तो आई थॉट कि मेरे अंदर का राइटर वो कुसमुसा रहा है कि मैं लिखूं. तो मैंने अपने विषय को चुना और मैंने जेनिफर जी से कहा, शशि कपूर जी की वाइफ से, कि मैं अपना ग्रुप बनाना चाहती हूँ. उन्होंने कहा ग्रुप बनाओ, पर ऐसा करो जो कोई ना कर रहा हो. तो सबसे पहले मैं जानी जाती हूँ लोक संगीत के लिए. तो मैं राजस्थान से 40 फोक आर्टिस्टों को लेके गई और उसका नाम था अ म्यूजिकल सैंड स्टॉर्म. जब हम वहाँ पहुँचे तो बत्ती चली गई और आंधी तूफान आया. तो मैंने जेनिफर से कहा कि मैम, हाउ कैन आई डू इट, देयर इज़ नो लाइट, देयर इज़ नो साउंड. देन शी सेड, यू आर अ फोक सिंगर एंड यू हैव बीन सिंगिंग इन विलेज. तो विलेज में तो बत्ती भी नहीं होती है. तो मोमबत्ती जलाई गई. 40 हम 7 लोग वहाँ, और हमारी सुरनाई की एक म्यूजिकल सैंड स्टॉर्म का बहुत धाकड़ तरीके से हुआ, जो आज 42 साल से नए नाटक कर रहा है. ईला जी, इससे तो बहुत सारे सभी जो इम्पोर्टेंट, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं, कई बार ऐसी, जैसे आज पकड़ना पड़ेगा जी, क्योंकि मैंने ज्यादा थिएटर की बात करी तो ये लोग डूब जाएंगे. जी. तो ये जो दोनों तरीके हैं. ऐसे भी लोग हैं जो पैदा हुए हैं और उन्होंने कोई चीज़ सीखी नहीं, स्पॉन्टेनिटी से उनके अंदर समझ थी, इंटेलिजेंट थे, अनुभव था. स्पॉन्टेनिटी का होना बहुत ज़रूरी है. अब ट्रेनिंग भी होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अनपढ़ हैं, जैसे एनएसडी में जब मैं गई, उसके पहले मैंने सोचा पेंटिंग का और कलाकार का क्या लेना देना है, पर बहुत लेना देना है. एक पेंटर भी जो है वो पहले देखता है, जगह जगह देखता है, फिर पेंट करता है. म्यूजियम जाना क्यों ज़रूरी है. सो पढ़ाई लिखाई, अगर देखिए मैंने एक बार एक ड्रग एडिक्ट का डॉक्टर का रोल किया. अब इसके लिए ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ड्रग खाऊं, बट मेरा ऑब्जर्वेशन, देयर आर फ्यू थिंग्स, ऑब्जर्वेशन, इम्प्रोवाइजेशन, इमेजिनेशन. कुछ कल्पना पे छोड़ते हैं, कुछ देखते हैं. मान लीजिए मुझे कल आपका रोल करना पड़ा, तो मैं देखूंगी आपने क्या पहना है, कैसे आप बैठी थी, कैसे आप सोच रही थी, और जब मुझे किरदार मिलेगा मैं कहूँगी मैं वैसी क्यों ना बन जाऊँ. तो इसमें दोनों चीज़ें. कभी कभी लकीर के फ़कीर अगर आप हैं, सिर्फ ओ नो नो नो, ब्रेख्ट सेज दिस, Stanislavski says this is rubbish. There is a one person which is called spontaneity. आपका अपना spontaneity, और आपको विद इन द फ्रेम रहना पड़ता है. नाटक क्या है, नाटक में अगर मैं मान लीजिए एक पारिवारिक नाटक कर रही हूँ और मैं कुछ उल्टा पुल्टा करने लग जाऊँ तो मैं सारे एक्टर को डिस्टर्ब कर रही हूँ. तो आई हैव टू बी, अगर इम्प्रोवाइज भी कर रही हूँ, लाइनें भी भूलते हैं हम लोग, पर ऐसा भूलते हैं कि आपको पता ही नहीं पड़ता. उसी समय हम, वो आर्ट आना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा आर्ट कि आपके को एक्टर को डिस्टर्ब ना कर दे. मेरा फ़ायदा है क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा नाटक मेरे लिखे हुए हैं या अनुवाद किए हैं, तो मेरी भाषा मेरे को पता है. अगर गड़बड़ हुआ मैं कर देती हूँ, पर दूसरे वाले को भी हमें देखना पड़ेगा
कि उसको झोल में ना डाल दें आप कि मुझे कहना था कि इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ, अब कभी नहीं आऊँगी, और मैं कहूँगी आज मैं जा ही नहीं रही हूँ, तो दूसरा फिर क्या बोलेगा कि तुम कब जाओगी, तो नाटक ही बदल जाएगा. सो वी हैव टू इम्प्रोवाइज इन अ वेरी सेंसिबल वे, जहाँ पे आपको खबर भी ना लगे भूल गए या हमने एक दूसरे को हेल्प करी और विद इन द फ्रेम हम रहें. आपकी बुक में जो बार बार है, मैं चाहूंगी तो ये कि अंजुला जी उसको पढ़ें, पर उसका एक छोटा सा एक सारांश ये बताती हूँ कि मैंने लिखा भी है. किताब तो आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप किताब ना खरीदें और मुझसे सब पूछ लें और चली जाएं तो ये तो फायदा नहीं. हम तो किताब ही बेचने आए. सो द बेसिक इज कि मैंने लिखा है मस्ती की पाठशाला. सबसे बड़ी पाठशाला क्या होती है? आपका परिवार. और मेरी मदर 8वीं फेल थी, 7 लड़कियों उनकी जो निकली हैं, किसी ने डबल MA किया है, किसी ने PhD किया है, कोई डॉक्टर है. ये कैसे निकली हैं? ये उन्होंने चक्रवर्ती पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ाई. 7 लड़कियां कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी है, और वो माँ पे श्रेय जाता है. वो माँ जिनके जुमले जो है ना, वो तो मुहावरे में बात करती हैं. अगर मेरे से कोई चीज टर्न, ये कौन फुअर चला, ये कैसे घर हिला, अरे फिर कभी कुछ ज्यादा बात करी, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ऐसा बोलती थी कि वो सारे मुहावरे मैं यूज कर रही हूँ. तो मैं ये इस सब की तारीफ के बाद भी हंसाने वाली बात है, क्योंकि आप परिवार के लोग बैठे हैं. मेरी माँ के इतने बच्चे थे ना, 7 लड़कियां 2 लड़के, दोनों लड़के भी भगवान की दया से एड वर्ल्ड के इस समय सबसे बड़े स्टार, पीयूष पांडे, प्रसून पांडे. एक बार मैंने 15 मार्च को अपनी बर्थडे बनाई, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी बर्थडे नहीं है. अरे मैंने कहा 17-18 साल की हो गई, यही बर्थडे मन रही थी, तो आज कैसे नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, तिथि के हिसाब से आई होगी, बट ये है नहीं, तब ऐसा था, तब वैसा था. अब हमारे बीच में जोक चलने लगा कि तुम सच्ची बताओ, तुम बोर तो नहीं हो गई थी? 7 लड़कियां थी, तो तुम्हें मेरी जन्म पत्री तो थी नहीं, तो याद भी है कि नहीं? तो इसके पीछे की कहानी आपको सुननी पड़ेगी कि वो समझ तो गई कि कुछ गड़बड़ हुआ है, पर क्यों गड़बड़ हुआ है? उस जमाने में क्या था कि माएँ घर में रहती थी, पिताजी स्कूल में जाके जो मन में आया उम्र लिखाई, जो मन में आया ना. ये भूल गए कि कभी ये बड़े होंगे तो इनके बीच में 6 महीने का डिफरेंस कैसे दिखेगा. हम सब तरह ऊपर के, अब किसकी छुपाएं और किसकी बताएं. यू नो, माय ब्रदर इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. ऐसे फॉर गॉड सेक भैया, हमारे खुद हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, तो तुम अपनी भी मत बनाओ, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही है तो हम छुपाना चाहते हैं. सो देयर इज ए इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेरी माँ की ब्लू डायरी, जिसमें सबकी दुनिया भर की बर्थडे लिखती थी, लड़की की नई बर्थडे थी. उस पे एक अंग्रेजी में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, जो मैंने इनको बताया, तो आप बताइए, लिखिए. Birthday, February 18th. My date of birth, according to the blue. All the previous dates of my birthdays, I have several vivid memories about my date of birth. It lingers in my memory as a special conversation. The world now knows my birthday as, but my mother would often say, Ila, I can say with certainty that 15th March is, I would retort, then do you mean that I have made up this date? This was always followed by the saying that when school admissions were taking place, my father was out of town and had deputed his friend Mishri Lal Jain to get us admitted into say. So he must have entered this date in the form. That does not know when I was born. This argument. For years I quarreled with my mother about my 6th offspring, and a girl at that. There had already been 5 girls born before you and 3 after. Why did you give birth to girls only? You needn't have. 8 daughters. Either Devaki had them, or this would embarrass her. She'd say, have some shame. But how come you remember the birth dates of... There seems to be no problem with your remembering the dates of the sisters older than me, the birthdays of those after me. Did you forget mine? Mat kyun mari gayi thi aapki mere samay? Not have any importance in your life? My entire being, to the date I was born on. If my date of birth is wrong, I would not let her get the better of me in this fight. I would enjoy her discomfort. Now I remember. Once your birthday and the festival of Holi, that day I remembered the Tithi. And you just accepted that 15th March was your birthday, according to the Hindu calendar. But then why does my passport have 5th March?
Again, she would protest. No, 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 that is quite out of the question. It definitely was. I would then say, then did I make up this date on my passport? The whole story of Miss Shilal Jain's faux pas would be repeated. Your father was out on tour, and maybe Miss Shilal Jain. I did not realize that my was involved in. Years later, I was really surprised when my sister Binnoji, who was living in Bhopal at the time, called me up saying, "Finally found out your date of birth." She went on to unravel the mystery. Mommy has probably forgotten about this. When you were born, I had 3 very close friends in school. 2 sisters, Shanno and Manno, and another girl called Beatrice. This time I went back to Jodhpur, I asked Beatrice if she knew where Shanno and Manno were. Beatrice asked me why I wanted to know about them after all these years. I said, I remember, once Shanno and Manno had distributed sweets in school, saying that they had a new arrival, a baby sister. So I had shyly told them, I also had a new sister born that day. So I want to find out from Shanno and Manno what the date was. Beatrice said she'd try and find out about these sisters. There was a call from Beatrice telling me, and they've confirmed the date was 25th February. I leapt up and called my mother in Jaipur. I found my date of birth. 25 February was the reply. Who has told you this? I told her about the cold chain that Binno had asked Beatrice, and Beatrice had called the 2 sisters. Have I given birth to you? Or have Shanno and Manno? Perhaps that is according to the English calendar, but definitely not according to the Tithi. I do remember that Magh had gone, winter had still not set in, the cool breeze of Phagun had started, and it was a month of Chait Baisakh, because I remember a Punjabi neighbor used to celebrate Baisakhi. You remember all this, but not my birth date? Go on now, don't trouble me. I don't remember, then I don't. My mother called me and asked, does it really bother you that I don't remember the exact date of your birth? Because I love to pull your leg. But I never let go. And I would start needling my mother. Now do you remember when I was born? I was in Jodhpur for a program, and I had decided that after the program, I'd go to Jaipur to see her. The Maharani asked me to come over for a visit. As we sat in the drawing room, facing me was a girl who was smiling at me. She said she knew my older sister, Hemlata, Binno. And she said, I am Shanno, Manno's sister. If you are their sister, then we share the same date, 25th February. Then I went on to recount the story of how Beatrice had verified this. I am that sister, but I was not born on 25th February, but on 20th February. So slowly, we seemed to be coming closer. My mother left us. Surprisingly, the diary contained the birthdays of several people, their wedding anniversaries, as well as their phone numbers. Each of them received either a card or a phone call. On the diary contained the birth dates of all. And there was another entry. How did she suddenly hit upon that correct date? If she had been alive, that I didn't know how she had taken this. During her illness, before she was admitted to the hospital, she must have consulted the Hindu calculated the tithi and the date, trying to jog her memory. It may be March, 15th March for my... That's a memory, I think. घर में वातावरण कैसा? हमारी डाइनिंग टेबल जो है, हम 6 बजे से चाय पीते हैं और 10 बजे जब हमें धक्के मारे जाते हैं तो हम उठते हैं. उस पे राजनीतिक टॉपिक से लेके, साहित्यिक टॉपिक से लेके, क्रिकेट से लेके, फिर पर्सनल खिंचाई से लेके, जब तक वो प्याले टूट वूट नहीं जाते हैं तब तक हम लोग लगे रहते हैं. सो आई मस्ट टेल यू कि मैं तो ये नहीं कह सकती हूँ, आज बहुत सालों से चल रहा है कि बच्चे 1 या 2 होने चाहिए, या आजकल तो नहीं भी होने चाहिए. उस ज़माने में हमें दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं थी. और बाउंस बोर्ड जो है वो अभी भी है. अगर मैं कोई बढ़िया काम करती हूँ तो मैं 7 बजे ही पीयूष को फ़ोन करती हूँ कि ये देखो ये 4 लाइनें कैसी लगी. अगर वो कुछ अच्छे काम करते हैं, हमें वी डोंट नीड. एंड आवर मदर, एज आई सेड, कबीर, रहीम ये सब करते थे, तो उन्होंने सिखाया था, निंदक नेरे राखे आनंद कुटीर समाए. तो आलोचक घर में रखो. तो मेरे लोग तो ये जो कबीर का है उसको इतना सीरियसली ले लिया है कि अगर वो फोटो देखें, तुम्हारा दुपट्टा ऐसा था, तुम्हें ऐसे बैठना था, तुमने कोई ज़्यादा बात की, तुम इतनी हंसी क्यों, मतलब घर में ही खींचातानी चलती है. बट दे आर ऑल वेरी अलर्ट पीपल. और उसका श्रेय फादर मदर दोनों को जाता है. फादर भी मेरे साहित्य को उस ज़माने में वो लोग
हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा करते थे, उनकी कविताएं बोला करते थे। घर का जो माहौल है ना, ये किताब आपको ये भी सिखाती है कि फैमिली एटमॉस्फेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ तो बड़े बड़े अमीर हैं, मैं कहूँगी गरीबी भी जो होती है ना, मुफलसी, वो भी आपको, हमने ऐसे नहीं थे, मिडिल क्लास थे, वो भी आपको एक नए तरीके से, आप देखिए ना जो आज बड़ा बना है, वो कई इवन बिल्डर्स कि वो उनके पिताजी मूंगफली बेच रहे थे, मार्क्स एंड स्पेंसर वो ये कर रहा था। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, या फिर अकेले में बैठना, उस समय पहली बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त होते हैं। सो टू टॉक योर सेल्फ, फिर आपको फिर किताब लिखने का, कविता लिखने का, दुनिया देखने का, पेड़ का कैसे ये झुका है, कोयल क्यों बोली है, वो उद्गार हर आम औरत में होते हैं, पर उसके लिए उसे समय चाहिए। हम जिंदगी की उलझनों में इतने उलझ जाते हैं। सो हमारा घर, वहाँ स्पोर्ट्समैन भी है, और अब जो नई जनरेशन आई है ना, वो तो कमाल की निकली है, वो और भी 10 कदम आगे हैं। सो एक्चुअली इसके लिए कोई वर्कशॉप में नहीं जाना पड़ा। आई सी माई डॉटर, मैं कहती हूँ यार तुम मेरे पास भेजो ना, एक ड्रामा में जा रही है, एक पियानो में जा रही है, किधर जा रही है, कुधर। हमारी एक अकेली मदर ने सबको स्टिमुलेट किया। तो वी नीड टू कनेक्ट विद ओल्ड जनरेशन, विद योर्स, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेटिंग, दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर फैमिली। आई विल गिव यू फर्स्ट वन आंसर, आपने इनसे पूछा, या यही हमारा ओवरलैपिंग होता है। इसका नाम है कि एज टोल्ड टू अंजुला जी। अब आप सभी जानते हैं कि महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने, करेक्ट। तो यहाँ भी, और फिर वेद व्यास जी ओरल, उनको क्या हुआ, एक बार छोटी सी कहानी कि ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद व्यास तुम तो महाभारत में पूरा, सब आपके रिश्तेदार हैं, आप तो पूरी परिवार से परिचित हैं, उनकी मानसिकता से परिचित हैं, तो फिर आप ना फटाक से महाभारत लिख दीजिए। तो वेद व्यास जी ने कहा वो मैं कर दूंगा, पर मेरी ना राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और मैं त्रुटियां बहुत होती हैं, तो मुझे कोई ऐसा चाहिए आदमी, व्यक्ति जो मेरे हास्य को भी समझे, मेरी संवेदनाओं को भी समझे, मैं जो बात कह रहा हूँ मैं पूरी कहानी कहूँगा, पर ऐसा कोई, उन्होंने कहा ठीक है, डेडलाइन बना दी उन्होंने, एक मतलब इतने इतने समय में कर दूँ। तो हमारे पूरे इस दौर में पर्दे के पीछे पेंगुइन जो है वो ब्रह्मा जी है, मैं वेद व्यास हूँ, एज टोल्ड टू अंजुला जी शी इज गणेश जी। तो ये जो गणेश जी हैं, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझा, ऑफकोर्स शी विल टेल यू हर एक्सपीरियंस। परिवार को भी इनके साथ आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। इन्होंने सुबह से शाम मेरे स्ट्रगल को भी देखा है, मेरे साथ इन्होंने नाटक किए, तरह तरह के किरदार किए, मेरे जो मैं लिखती हूँ इनसे बाउंस करती हूँ मेरे लिखने पढ़ने को। सो देर इज हार्डली एनी, व्हाई आई थॉट, इवन माई सिस्टर्स आस्क्ड मी, मुझसे क्यों नहीं पूछा, आपको ट्रस्ट, देर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं बात, उस बात को वो कितनी संवेदनशीलता से, सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहूँगी कि she was a professor in English, she was teaching English, she has been doing Shakespearean plays, so you can understand कि ये किस लेवल तक जा सकती थी, इनकी अंग्रेजी कुछ भी हो सकती थी। पर अगर वो अंग्रेजी बहुत ज़्यादा ऐसी वैसी होती तो आपको ये नहीं लगता कि इला अरुण के मुंह से निकले शब्द हैं। ये इतना करीब से मुझे जानती हैं कि आप अंग्रेजी भी इनकी पढ़ेंगी तो आपको लगेगा इला अरुण सामने बैठ के आपसे बात कर रही। अब आप अपना अनुभव बताइए। I know Ela ever since I first started doing Hindi theatre with her. Things from her childhood, but I would never remember any. Also, she writes a diary every. So we started writing the book. Penguin ने कहा कि आप, तो हमने सोचा कैसे लिखेंगे. So we started off first. ऐसे अच्छा जो तुमने लिखा है मुझे handwriting कोई नहीं पढ़ सकता, ये खुद भी नहीं पढ़ सकती हैं शायद. So I said अच्छा ठीक है, अब writing तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ. We get together. You narrate to me. So it came. We spent days together. And there was a really happy days because we've never laughed. ये इतना हंसी थी मेरी बातों पे, मैंने कहा ऐसा ना हो कि सारी किताब में स्माइली बनी हो, you know. I said it's a serious matter, but she laughed the way I used to talk to her. So I must say full justice Anjula ji has done. So I call her, I say I'm her mind mate, soul mate तो छोड़ दीजिए, mind mate. I can almost complete a sentence that she well, at least in her creative things. We sit together, we discuss. Of course, our greatest problem was
technology, because we did not know how to cut and paste and do things like that. I'm a little ahead of my age group at 80. I don't know any of my friends who had started doing this now. So I'm only able to, last 3 days were like very tense. But before that, we had great fun. And the narrations that she gave, and of course, her Hindi book is also going to come out. Angrezi mein jo bhi which I thought I could interpret. See, the reason when Penguin asked us to write, तो पहला एक पब्लिशर है जो खुद आया और कह रहा है आप लिखिए पर अंग्रेजी में लिखिए. मैंने कहा ये तो बड़ी धर्म संकट हो गया, मैं तो हिंदी में लिखती हूँ. एंड देन शी गिव मी अ रीज़न. ये बात सही है कि यहाँ उड़ीसा के भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मेरी म्यूज़िक को प्यार करते हैं, मेरी एक्टिंग को. मे बी दे कैन नॉट रीड हिंदी, सो आई थिंक आई हैव फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इफ दे कैन रीड माई बुक इन इंग्लिश, द बंगालीज, द साउथ इंडियंस, सारे लोग, उन पे मैं हिंदी इसलिए थोप दूँ जबकि हिंदी की आ रही है, तो इट विल गो वेरी वेल विद ऑल दोज पीपल हु वांट टू रीड इन हिंदी. इट्स लाइक दैट. बट मैंने भी अंग्रेजी सीखी है. वैसे मेरी अंग्रेजी अब इतनी अच्छी नहीं है. शी सेज माय इंग्लिश इज बेटर देन हर्स. शी बाउंस्ड ऑफ वन वर्ड एट मी व्हिच आई फाइंड डिफिकल्ट टू इवन प्रोनाउंस. आई वंडर हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस. Librocubicularist. Does anyone know the meaning of? She sprang it on me and says, Anjula ji, you don't know this, please put this in. I wasn't able to use it. A person who almost sleeps on books, इतना किताब पढ़ता है, so किताबी कीड़ा जो कहते हैं ना, bookworm. Much more than a bookworm. Someone who sleeps with a book. So ऐसा नहीं, मैं इनसे डरी नहीं, मैं से कई किस्म के इंग्लिश के वर्ड्स मैंने इनकी तरफ फेंक दिए. किसको बताइए? इला जी, एक और चीज जो आपने हाला, किया, हाला, उसके बारे में जरा बताइए. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग आते हैं, ख़ास तौर से औरतें हैं, और वो मुझे ये कहती हैं कि 3 पीढ़ी से हम आपके रेशम के रुमाल पे डांस कर रहे हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये गाना ना केवल मैंने गाया है, मैंने लिखा है, मैंने कंपोज किया है. और आज की तारीख में even Kalbelia, the folk singers are singing my song. So it is, मुझे देखिए, गाना तो मुझे हर जगह का अच्छा लगता है. जब मुझे पता पड़ा कि कल उड़ीसा के लोगों ने डांस किया था, तो मैंने सोचा ओहो हो, मैंने उनको क्यों नहीं देखा. परसों ना जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था. आई लाइक folk हैज़ नो लैंग्वेज बार. उनकी रिदम, उनका पहनना, उनका ओढ़ना, इसने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं 26 जनवरी पे टैबलूज में भी जाती थी. किसी किस्म का फोक हो, फिर हमारे घर की शादियाँ, और ख़ास तौर से राजस्थान जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, वहाँ तो आदमी भीख भी जो है ना, वो बिना गाए नहीं मांगता है. फ़र्क कितना है. मैंने बताया भी था, आपने शायद किताब पढ़ी नहीं, कि मेरा टीचर जो है वो रघुनाथ था, हमारा उस समय हेल्पर. बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी, और मैं कोई होंगी पहली या दूसरी क्लास में, तो साइकिल के हैंडल पे बैठा के मुझे वो स्कूल छोड़ने जाता था. उसके बाद जो जाता था तो गाता था जोर जोर से, और मुझे थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होता था. मैं माँ से कहती थी कि इनके साथ मैं नहीं जाऊँगी. एक्सक्यूज मी सर, माफ़ी चाहती हूँ, आप दोनों पीछे जाके बात कर लें. तो मैं आपसे ये बताना चाह रही थी कि ये जो हमारे रघुनाथ हैं, उन्होंने इतना गाया, तो मैंने घर जाके अपनी माँ से कहा कि मैं ये अगर गाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी स्कूल. लीस्ट आई रियलाइज्ड कि मेरी गायकी में जो मर्दानापन है ना, वो रघुनाथ का ही है. क्योंकि वो ऐसे जो खींच के ऊपर ले जाता था, फिर वहीं छोड़ देता था, और फिर साइकिल चलाता रहता था, और फिर उसके बाद कहीं से पकड़ लेता था. ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो आपका प्रांत, आपके प्रदेश, आपके कॉमन मैन वही आपको देते हैं. और राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया है. राजस्थानी ऑडियंस की भी, मैं सारे लोगों की, आप चाहे वो गोयनकाज हों, चाहे वो हमारे रुयाज हों, चाहे वो आपके राजस्थान के एक से एक बड़े आदमी की, हर शादी में अगर शाहरुख खान डांस कर रहा होता था तो पहले दिन इला अरुण भी थी जो राजस्थान के कल्चर को गा रही थी. वो भी एक दौर था. पर आप ये मत भूलिए कि उस दौर में और आज में 20-25 साल निकल गए ना. डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी सेम इला अरुण. No, you're already very energetic for the India. So there are 2 things you have asked me actually. One is how I dress up.
that is very natural. I am very comfortable in what I wear. Nothing is to impress people. Actually, designers come to me. Even Sabia yesterday, the day before I went somewhere, he said, अरे ये क्या पहना है, बड़ा ज़बरदस्त. So मैं naturally पहनती हूँ जो रंग राजस्थान में थे, जो और मैं ज़्यादा वर्किंग क्लास के साथ मैंने इंटरेक्ट किया. जितना भारी लहंगा होगा ना, उतना मैं अपने आप को ईजी महसूस करूँगी, क्योंकि वो गरीबों की. और दैट इज़ वेयर इज़ माई वोट फॉर घाघरा कम्स, यू नो. क्योंकि एक बार मैंने डांस किया तो जब फिल्मी हमारी तारिकाएं यानी एक्ट्रेसेस होती हैं, तो वो उनको अगर राजस्थानी, सपोजिंग अब मैं आपको उदाहरण दूंगी, श्रीदेवी जी, तो उनका टेलर मेरा टेलर एक ही है, शेखर. तो वो कहेंगे ऐसा करना जिससे यहाँ से घेर कम हो, ताकि मेरा फिगर न. मैंने क्या करा, जब मेरा 80 कली का लहंगा देखो घूम रहा, मैंने मंगवाया झालावाड़ से चक्री डांसर का, जिसका वाकई में 20 मीटर था. अब मैं मोटी लगूँ या ना लगूँ इससे मुझे परवाह नहीं है, मुझे वो घेर चाहिए जब मैं घूमूं. सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट फिगर, आई एम बॉदर्ड अबाउट हाउ एंड व्हाट दे वेयर. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वेयरिंग चूड़ास और बिंदीज. वो फैशन स्टेटमेंट बन गए, क्यों बन गए मुझे नहीं मालूम. आई एम कंफर्टेबल, मैं आराम से पहनती हूँ और उसके लिए मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता है. तुम्हें आज सच और आपने फिल्म का जो बात पूछी, उस चकाचौंध से क्यों नहीं घबराई, द क्रेडिट गोज टू मिस्टर श्याम बेनेगल. आई स्टार्टेड, मेरी पहली फिल्म थी मंडी, विद शबाना आजमी, सुष्मिता, स्मिता पाटिल, अनु कपूर, पंकज कपूर, ओम पुरी. जब उस तरह की रेpertory के साथ आप काम करेंगे, जो कि एक्सटेंशन ऑफ थिएटर है, रियलिटी से जुड़ा हुआ सिनेमा करा श्याम बेनेगल ने. आज अंजुला जी बता रही थी, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, कि बहुत अच्छा एक सेशन हुआ जिसमें इकट्ठ के बारे में बात हो रही थी. मैं बताना चाहती हूँ कि मैं श्याम बेनेगल की सुषमन कर चुकी हूँ व्यूवर्स की ज़िंदगी में. और आपकी ये एक एक साड़ी जो आपने पहनी है, उस पे हम लोगों ने वीव भी किया है, क्योंकि ओमपुरी ऐसे एक्टर थे जिन्होंने कहा मैं तो जाके गांव में रहूँगा. पोचमपल्ली में, साउथ में हुई थी, पोचमपल्ली में. एंड ही स्टार्टेड लर्निंग कि लूम कैसे होता है. और फिर श्याम बाबू हर तरह की साड़ियाँ, इकट्ठ उड़ीसा की, इकट्ठ अपना साउथ का पोचमपल्ली का, आंध्रा का, उसके बाद पटोला गुजरात का. मैं इससे एक्सपोज थी. आई फेल्ट वेरी बैड कि मैंने आप लोगों का ये अच्छा सेशन क्यों मिस किया, जहाँ इतनी साड़ियाँ, इतना इकट्ठ डिस्कस हुआ था. इकट्ठ हैज़ बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ. और एक मैंने और भी एक फिल्म की थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं लिख के लाई थी. अभी 6-7 साल पहले मैं आई थी. स्नेहा शीज आए हैं कि नहीं आए, वो सपोज टू कम. ही मेड वन फिल्म ऑन चारूमा. आपके यहाँ जब सोनामी जब आया था, तो वो इट इज़ कॉल्ड रिडली टर्टल. उस पे चारूमा ने कैसे उस गांव को खड़ा किया, उनका किरदार मैंने निभाया है. तो ये श्याम बेनेगल ने सिखाया कि ज़मीन से जुड़े लोगों की ज़िंदगी और कहानी. उसके बाद चकाचौंध में घुसना बहुत आसान था, क्योंकि दे वर इम्प्रेस्ड बाय अस, वी वर नॉट. उस ग्लिटर से हम नहीं चकाचौंध हुए. जब चकाचौंध की बात होती है, क्यों क्लैपर, आपने अच्छा है बहुत. क्लैपर बोर्ड का एक आप लोग किताब खरीदना, मैं इतना बोल रही हूँ. तो क्लैपर बोर्ड जो है बहुत अच्छी चीज़ है. हमारी मदर, जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा किसी न किसी मुहावरे, लोकोक्तियाँ से बात. अब जब हम जवान, उनकी 7 लड़कियाँ थी, तो कोई कुछ भी गड़बड़ कर सकता था. और आप जाते हैं कि उस समय अगर गड़बड़ की होती तो पता नहीं हम कहाँ बैठे होते. तो उनका एक जुमला था, आवेश में कभी विवेक मत खोना. और वो बात जिंदगी में जब भी ऐसा मौका आया, कोई प्रलोभन आया या इश्क हुआ, इश्क बिना तो औरत क्या है, इश्क तो होंगे ना, कोई ऐसी बात नहीं है. तो उस समय ये था कि आवेश में विवेक मत खोना. एंड इट हैज़ रियली वर्कड. हमेशा, चाहे वो आवेश गुस्से का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो प्रलोभन हो. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी चीज़ें जो आजकल तो आप यूट्यूब में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, जहाँ छोटे गांव से गई हुई या छोटे शहर से गई हुई लड़की वो अपना विवेक खो सकती. और एक मजाक मेरा चलता नीना गुप्ता के साथ, जिनकी शादी, उनके हस्बैंड का नाम है विवेक. मैंने कहा यार पहली बार तुमने अच्छा आवेश खोया, बड़ा समझदार हस्बैंड आया है विवेक. तो
आवेश में विवेक मत खोना इज अ क्लैपर बोर्ड जो कई बार आपको इसमें दिखाया जाएगा। आप पढ़ेंगे कि जब भी अगर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ, तो मम्मी का वो क्लैपर बोर्ड आ गया, आवेश में विवेक मत खोना, और हम सही जगह पे थे। आज वो नहीं है तो भी वो आवेश में विवेक मत खोना चलता है। जहाँ मैंने आवेश में विवेक खोया हो नहीं फिल्मों, रह गया। अरे भाई साहब ऐसा तो बहुत हैं, क्योंकि आप ही जानते हैं, ऐसे उनका नाम नहीं ले सकते ना, ऐसे बड़े बड़े ऐसे एक्टर हैं, एक बार खड़े हो जाएं तो विवेक खो सकता है, वो नहीं खोना चाहिए। बट देयर आर सर, आई मस्ट से आई हैव डन फिल्म्स विद द पीपल जो कि बहुत ही समझदार लोग थे। जैसे मैंने लिखा भी, आप पढ़िएगा चैप्टर, मिस्टर बच्चन के साथ मैंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की, एक की थी देवा जो रिलीज ही नहीं हुई, ओमपुरी वॉज माई ब्रदर, इफ यू रीड दैट वन। और फिर मैंने बूढ़ों के साथ ज़्यादा करी, हंगल साहब के साथ विवेक कैसे खो सकता है आदमी एक ही हंगल विवेक तो खो ही नहीं सकता है। तो पर राजकुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो आपको वाकई में पढ़नी चाहिए। जब मैं पहली फिल्म करने गई थी तो वो हमने मसूरी में की थी, और राजकुमार जी, पता नहीं नए लोग शायद जानते भी ना हो राजकुमार जी कौन, जानते हैं ना भैया सब, हमारी फिल्म के जानी। तो जानी जब उस फिल्म में पुलिस पब्लिक में जानी भी थे और सब थे, तो मैं जाती थी और सर्दी थी तो धूप खाने के लिए बैठती थी, और एक तरफ जानी तो, और जैसे हम सबका होता है स्टार की तरफ सफ़ेद जूते, जानी कैसे बैठे हैं क्या है, उनकी चाय आती थी टिकोजी से ढकी हुई, बड़े अंदाज में बैठते थे, टिकोजी ये खोला, स्पॉट बॉय था, फिर वो चाय पीते। मेरी आती थी, स्पॉट बॉय लाता था गंदा सा थर्मस, उसमें से छोटा सा चाय दिया, गिरा क्या, वो चला जाता था। अब उल्टा है, अब तो मेरे साथ पूरा ट्रुप चलता है, वो बिगनर थे ना। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके कहा तुम अकेली आई हो? मैंने कहा हाँ। तो आओ चाय पियो। उन्होंने चाय पिलाई, फिर उन्होंने कहा कि कभी भी अकेले इंडस्ट्री में मत जाना, वही एक समय है जब आपका आदमी आपको इमोशनली, तरह तरह के आप रोल करते हैं, तरह तरह की आप चीज़ें करते हैं, तो आप उसे कहीं खो न जाएं। तो इसलिए उनकी इस बात को मैंने रखा और गांठ बांध ली। अब मैं जाती हूँ तो पहले कंडीशन रखती हूँ, स्पॉट बॉय जाएगा, मेकअप मैन जाएगा, हेयर ड्रेसर जाएगी। इतना नहीं है कि निम्मी की तो मम्मी जाती थी, वो ज़रूरत नहीं है, बट समबडी यू नीड। सर नमस्ते। Actually, Ila का तो clapper board पहले से था. She was married when she entered films. That was another thing. अगर हम Do they have a time? 2-3 minutes. हाँ बस we wind up. No, I will end up with. I'll just tell you कि प्रतिस्पर्धा होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दूसरी वुमन एक्टर हमारे साथ है और अगर कंपटीशन नहीं है तो ये झूठ है। तो शबाना तो एक्सेप्ट भी करती हैं कि स्मिता के टाइम मेरा काफ़ी था उनसे, वरना जिनके साथ मैंने काम किया ज़बरदस्त महिलाएं, विद्या बालन, शबाना जी, स्मिता पाटिल, ये रेखा जी, ये बहुत अच्छी अनुभवी महिलाएं हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मैं आपसे आखिरी में ये कहूँगी कि अपने आप में कमज़ोर होती नहीं है, हर औरत अपने आप में बहुत मजबूत होती है। और इसीलिए एक गाना जो मेरा है जो आप सबको बहुत पसंद है, पर इट केम जस्ट आफ्टर चोली के पीछे, तो सबने सोचा पता नहीं क्या होगा, पर एक्चुअली वो गाना जो है 7.5 मिनट का है और पहला मारवाड़ी में रैप है, और ऐसी गांव की लड़की के बारे में है कि वो कहती है कि मुझे अगर छेड़ोगे तो उसका मैं बदला लूंगी। कभी निर्भया हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी आसानी से आदमी निकाल जाता है, सत्ता उसको छुपा जाती है। तो वो लड़की कैसे अपनी जबान को खोलती है, वो ऐसा थी मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, उनकी लाल पकड़ी जो हमारी बाँ पकड़ी, मैंने गुस्सा गण आया, उन्हें मारी लकड़ी, उन्हें मूछा घुमाई, मैंने हाँ क्या दिखाई, चोरी क्यों अकड़ी, क्यों मारी लकड़ी, बोली मैं सुन अरे लाल पकड़ी थी मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, तूने बाँ पकड़ी, मैंने मारी लकड़ी। तो वहां से होता है, और इसीलिए वो लड़की फिर वो कहती है वो कहती है कि तू न जाने मैं हूँ कौन, छोरा मिनिस्टर को करूँ मैं टेलीफोन,
सीटी सर बजाते पुलिस दौड़ी चली आई, कंगन मारा, उतारा, हथकड़ियाँ पहनाई, थानेदार के आगे फिर मैं मुस्काई, मैंने दियो लटको, उसने दियो खायो झटको, थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ी मेढ़ी हुई, थानेदार की सारी अकल घुमाई। यहाँ से बढ़ते 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 बात ऐसी आ गई कि इलेक्शन में टिकट मिला, उसके बाद उसको जिताया गया, तो सिंबल क्या था? घाघरा। इलेक्शन में मारो नाम ले मडवारी मर्दा से आगे निकले की जनानी, इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ने बनाओ, वोट फॉर घाघरा, वोट फॉर घाघरा। सो आई डेडिकेट माय सॉन्ग टू ऑल वुमेन। This What? is an iconic rap. घाघरो जब ओए सब मर गया रे मारो घाघरो जब खेत में खड़ी खारी की तगड़ी ऊँची लाल पगड़ी जो हमारी बाम बगड़ी मैंने बुता बनाया उन्हें हमारी लकड़ी उन्हें मुच्चा कमाओ मैंने आँखें दिखाई फिर क्यों आकड़ी तू हमारी लकड़ी बोल मैं सुन बोले लाल पगड़ी थी मैं खेत में खड़ी खारी की तगड़ी उन्हें बाम पगड़ी मैंने हमारी लकड़ी तो काय बोली काय बोली आरा दूर हट जा रे छोरा दूर हट जा रे हट जा तुम्ही मैं खाने ऐसा झटका दूर हट जा फेरा गली शहर में मारो घाघरा कोई सब मर गया रे मारो घाघरा जो And I'm so honored again to be here with you. आई हैव टू से वन थिंग। बहुत अच्छा पूछा आपने। क्या होता है जनरली मॉडरेटर पे बहुत डिपेंड करता है, कई बार वो चोली के पीछे पे ही अटक जाते हैं। इन्होंने थिएटर की बात की, औरत की बात की, घर की बात की, फिल्म की बात की। बात 30 सेकंड में भी हो सकती है पर उसका वजन होना चाहिए। एंड नाउ यू नो कि पर्दे के पीछे प्लीज बाय द बुक। Please buy the book. Ilaji is around to sign your copies. And thank you so much for giving us a patient hearing. एब्सोल्युटली मैम, एक बार हम लोग आपको सम्मानित करना चाहेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्रीमती मधुचंदा बहू जी और श्रीमती प्राची नाइक, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों आ जाएं और यहाँ पे दोनों को आप सम्मानित करें। और मैम आज भी जब घाघरा घूमता है तो सब उई उई मर ही जाते हैं। एब्सोल्युटली मैम, यस टोटली। All right, thank you so much. Thank you, everyone. Ladies and gentlemen, we are now ready to move towards the valedictory session of Kalinga Literary Festival. And we are privileged to have with us Shri Arun Sao, Deputy Chief